electrovalent compounds or ionic compounds are the compounds which contain ionic bond. And there are different properties of ionic compounds. And number first property is solubility. Solubility means the interaction between the solute and solvent. Electronegative means the element which have a tendency to gain electron, chlorine, और इसके बाद है ऑक्सीजन और इसके बाद है नाइट्रोजन. Because of that ability it decrease the force of attraction by NaCl dissolving water. जरा मुझे बताओ यहाँ पे Na है और इसके बाद है Cl. We'll discuss the properties of ionic compounds. What are ionic compounds? The compounds which contain ionic bond, and these compounds are called as ionic compounds, or these are also called as electrovalent compounds. The electrovalent compounds are ionic compounds or the compounds which contain ionic bond. Now ionic compounds have different properties, and number first property, that property is solubility. What is solubility? Solubility is simple. The interaction between, solubility means interaction between the solute, interaction between the solute and solvent molecule. The interaction between the solute and solvent molecule and resulting the formation of solubility means ionic compounds. Ionic compounds are those compounds which contain ionic bond, and there are different properties of ionic compounds. And number first property is solubility. Solubility means the interaction between the solute and solvent and resulting the formation of solution, that represent solubility. तो solubility means जो इंट्रैक्शन होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, और इसके बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, सॉल्यूशन की, एंड दैट रिप्रेजेंट solubility. According to solubility principle, when we define solubility principle states that according to solubility principle, like dissolves like. According to solubility principle, like dissolves like. That is, polar always dissolve in polar solvent, and polar solute always dissolve in polar solvent, and non-polar solute जो है that always dissolve in non-polar solvent. आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर. यही वजह है कि आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water. The second point about the solubility is according to solubility principle. Second point about solubility, according to solubility principle, like dissolves like. Like dissolves like means polar dissolve in polar solute, dissolve in polar solvent, and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. अब आगे देखो, if we take the example of NaCl, sodium chloride. Since sodium chloride have two separate ends, first one is Na positive और इसके बाद है Cl negative. Such type of molecules which have two opposite ends, such molecules are called as polar molecules. तो polar means po मतलब two and lar का मतलब है ends. The molecule which have two ends, जिन मॉलिक्यूल्स के पास दो सेपरेट एंड हो, नंबर फर्स्ट इज प्लस और इसके बाद है नेगेटिव, इसके बाद है माइनस, और सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर. जरा मुझे बताओ, Na के पास चार्ज क्या है, प्लस, और Cl के पास चार्ज क्या है, माइनस. इसलिए जो NaCl है, NaCl इज कॉल्ड पोलर सोल्यूट. And number second, if we take the example of water H2O, since oxygen is more electronegative than hydrogen, as a result oxygen will have negative charge और हाइड्रोजन के पास जो चार्ज होगी that is delta positive, और इसके केस में जो चार्ज होगी that is positive, और इसके केस में जो चार्ज होगी that is delta negative. ओवरऑल आपको याद रखना है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो
नेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब सवाल है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या फर्क है? इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स the element which have a tendency to gain electron, the element which gain electron, और इस एलिमेंट का नाम पड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जानते हो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दैट possessed by an element, और इस एलिमेंट का नाम पड़ा है फ्लोरीन, और इसके बाद है ऑक्सीजन, और इसके बाद है नाइट्रोजन। और नंबर सेकंड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास एक प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी का नाम पड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो आप जानते होंगे। ओवरऑल आपको याद रखना है, जो वाटर है, वाटर के केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन हैव डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन के पास जो चार्ज होगी दैट इज डेल्टा पॉजिटिव। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव टू ऑपोजिट एंड, नंबर फर्स्ट है डेल्टा पॉजिटिव, इसके बाद डेल्टा नेगेटिव, एंड सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज पोलर। सिंस वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, that is why water is called as polar solvent. So according to solubility principle, like dissolves like, that means polar solute always dissolve in polar solvent, and non-polar solute always dissolve in non-polar solvent. आयोनिक कंपाउंड की जो पहली प्रॉपर्टी होती है दैट इज सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी को हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर, दैट आल्सो रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी। अब जरा मुझे बताओ, NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, सर सोडियम क्लोराइड मींस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन Na and Cl, और ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का नाम पड़ा है आयोनिक बॉन्ड, एंड आयोनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन नेचर। आयोनिक बॉन्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। सर अगर NaCl के पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसके बाद भी ये वाटर में डिसॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि अगर वाटर एक कोवलेंट सॉलिड कोवलेंट कंपाउंड है और NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, और Na और Cl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वेरी स्ट्रांग, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन NaCl still dissolve in water. Why? This is because water molecules have very important property, or that property is called dielectric constant. सॉल्वेंट के पास एक प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी का नाम पड़ा है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब सवाल है सर ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट to decrease the force of attraction between the immersed, ability of solvent to decrease the force of attraction between the immersed particles or immersed charges is known as dielectric constant. और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो एबिलिटी जो एक सॉल्वेंट के पास होती है, बिकॉज ऑफ दैट एबिलिटी इट डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो जो एबिलिटी एक सॉल्वेंट के पास होती है बाय विच इट डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल, और इस एबिलिटी का नाम पड़ा है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, MTR मुझे तो रटो। इन केस ऑफ वाटर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 81, means water decrease 81 times force of attraction between solute। मान लो अगर हमने यहां पे NaCl लिया और NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, ऑल्दो कि NaCl के पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, इसके बाद भी ये NaCl डिसॉल्व क्यों हुआ वाटर में? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, and the value of dielectric constant of water is 81,
means 81 times water decrease the force of attraction which is present between NaCl. 81 times, not a joke. 81 times it decrease the force of attraction which is present between NaCl. यही वजह है कि water is called as universal solvent. Why water is called universal solvent? Because of high dielectric constant value 81 और कुछ बुक में लिखा है 82, 81 because of high dielectric constant of water 81 water is said to be universal solvent. ओवरऑल आपको याद रखना है कि why ionic compounds are dissolved in water? Because of the presence of important property of water. That property is called dielectric constant. Next point. We can define solubility next way. If we take the example of NaCl, sodium chloride. Sodium chloride have two ends. Number first is Na positive और इसके बाद है Cl negative. And number second is water. H single bond O single bond H. This is delta positive and this is delta negative and this is delta positive. According to solubility principle, like dissolves like, NaCl is polar solute and water is polar solvent. As a result, NaCl will dissolve in polar solvent or that polar solvent is water. अब सवाल है कि सर वाटर के केस में why NaCl dissolve in water? Why NaCl dissolve in water? जरा मुझे बताओ, यहाँ पे Na है और इसके बाद है Cl नेगेटिव और यहाँ पे है H पॉजिटिव, इसके बाद है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव. नंबर फर्स्ट इज OH और इसके बाद यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के पास होगी डेल्टा नेगेटिव चार्ज. डेल्टा नेगेटिव मींस पार्शियल चार्जेस. इसके बाद यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है. नाउ व्हेन NaCl dissolve in water, as a result interaction starts between opposite ends. यहाँ पे Na पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव और O के बीच में इंट्रैक्शन होगी. इन द सेम यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव के बाद बीच में इंट्रैक्शन होगी. Due to this interaction, the bond between the NaCl and Na and Cl break down. ड्यू टू दिस इंट्रैक्शन, जो वाटर मॉलिक्यूल और Na पॉजिटिव के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है, इस इंट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड प्रेजेंट है NaCl के बीच में, दैट इज ब्रेक डाउन. एज अ रिजल्ट दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन. अब आगे देखो, मान लो यहाँ पे अब Na पॉजिटिव है, सिंस वाटर इज डाइपोल, एज अ रिजल्ट इट कंटेन टू एंड्स. नंबर फर्स्ट इज OH एंड ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे भी इंट्रैक्शन होगी. नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल है. बताओ वाटर मॉलिक्यूल है क्या है? पोलर, डेल्टा नेगेटिव, इसके बाद डेल्टा पॉजिटिव, इसके बाद डेल्टा पॉजिटिव. यहाँ पे भी इंट्रैक्शन होगी और यहाँ पे भी इंट्रैक्शन होगी. OH सिंगल बॉन्ड H, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी इंट्रैक्शन. O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी इंट्रैक्शन. Due to this interaction, it results in the formation of shell. Water molecule form the shell और इस shell का नाम पड़ा है hydration shell. इस shell का नाम पड़ा है hydration shell. Hydration shell is that type of shell which is formed by water molecule around the ions. यहाँ पे Na पॉजिटिव के बाहर जो ये shell है, इस shell का नाम पड़ा है hydration shell. अब आगे देखो, इन द सेम यहाँ पे Cl नेगेटिव है. इन दिस केस H पॉजिटिव एंड H डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव. H positive will interact here. In this case HO single bond H, delta positive will interact here. और यहाँ पे भी interaction होगी. When interaction takes place, it again result in the formation of spherical shell. और ये जो spherical shell यहाँ पे forming, that shell is called as hydration shell. और since when hydration shell forms, इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड Na पॉजिटिव. यहाँ पे इंट्रैक्शन हुई बिटवीन Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव. दुनिया जानती है व्हेन एवर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस एनर्जी रिलीज. और सिनस की वाटर मॉलिक्यूल ने यहाँ पे एक शेल बनाई और जिस शेल का नाम पड़ा है हाइड्रेशन शेल. और जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग हाइड्रेशन शेल, इस एनर्जी का नाम पड़ा है हाइड्रेशन एनर्जी.
तो what is hydration energy? Is simple. The energy which is released when interaction takes place between water and ions, that is Na positive and Cl negative. The interaction which takes place between water and ions, due to this interaction energy release, और इस energy का नाम पड़ा है hydration energy. Sir, what is hydration energy? The amount of energy released when water molecule interact with opposite ions, that energy is called hydration energy. इस तरह भी मैं डिफाइन कर सकता हूं. हाइड्रेशन एनर्जी इज सिंपल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म शेल. The amount of energy released when water molecule form shell around the given ions, and that energy is called hydration energy. अब आगे देखो, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड सिंस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रेशन शेल, दीज आयन्स गेट सेपरेट. Na भी सेपरेट हुआ और Cl भी सेपरेट हुआ, एंड दीज आयन्स आर सेड टू बी नाउ हाइड्रेटेड. और ये जो आयन्स है, आयन्स को तब हम जाके यूज करते हैं एक टर्म, दीज आयन्स आर सेड टू बी हाइड्रेट. ये आयन्स सब हाइड्रेट हुए हैं. हाइड्रेट का मतलब है एक तो ये सेपरेट हुए, और प्लस जो हाइड्रेट मीन्स की अराउंड द Na positive and Cl negative water molecule form shell, and these get now separate, और इन separated ions का नाम पड़ा है hydrated ions, and these ions are now called as hydrated ions. अब आगे देखो, रिमेंबर वन थिंग, जो ये सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट है, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी. Hydration energy is directly proportional to solubility. More is the hydration energy, more will be solubility. Solubility जो है, solubility, there is direct relation between hydration energy and solubility. If the value of hydration energy is increased, और इसके बाद जो solubility है that is also increased. Next point, लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था क्रिस्टल एनर्जी, और जो क्रिस्टल एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी, क्रिस्टल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी. एज द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल एनर्जी इंक्रीज, सॉलिबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज. अब आगे देखो, अब यहां से पता चला कि व्हाई NaCl डिसॉल्व इन वाटर. तो लाइक क्रिस्टल एनर्जी, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी लाइक क्रिस्टल एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. लाइक क्रिस्टल एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी जो है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. As the value of charge increase, hydration energy will increase because more interaction takes place. And as the value of size increase, hydration energy will decrease. Next, यहाँ पे हम एक और टर्म यूज करते हैं, that term is called electron density. As the electron density is increased, interaction increase, और हाइड्रेशन एनर्जी का भी वैल्यू इंक्रीज होगा. अब आगे देखो, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज. एज द वैल्यू ऑफ चार्ज इंक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज, एंड एज द वैल्यू ऑफ साइज डिक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी इज इंक्रीज. मान लो हमसे पूछा गया, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ Li पॉजिटिव, इसके बाद Na पॉजिटिव, इसके बाद K पॉजिटिव, और इसके बाद Rb पॉजिटिव, और इसके बाद Cs पॉजिटिव. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर फर्स्ट, लीना ने की रब से फरियाद. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लिथियम, इसके बाद है सोडियम, इसके बाद है पोटेशियम, इसके बाद है रुबिडियम, इसके बाद है सीजियम. You all know as we move down the group size increase. As we move down the group size increase. तो as we move down the group size increase, तो out of Li and cesium have more size as compared to Li positive. अब Li पॉजिटिव का साइज कम है, अभी मैंने बताया. मान लो हमसे पूछा गया कि यहाँ पे LiCl है, इसके बाद NaCl है, और इसके बाद KCl है, इसके बाद RbCl है, और इसके बाद ClCl है, Cs cesium है. इसके बाद हमसे पूछा गया, आउट ऑफ दीज आयनिक कंपाउंड्स फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी. सिंपल तो का मेथड यहाँ पे भी हम यूज करते हैं. NaCl को देखा तो NaCl विल बी मच मोर सॉल्युबल, लेकिन आगे देखो आउट ऑफ दिस विच इज मोर सॉल्युबल. तो सॉलिबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन चार्ज, एंड इनवर्सली इट डिपेंड्स अपॉन साइज.
अब जरा मुझे बताओ चार्ज। इफ यू कैलकुलेट द चार्ज हियर Li positive, Na plus, K plus, Rb plus, Cs plus means the value of charge is same. तो ऑन द बेस ऑफ चार्ज वी कैन नॉट डिसाइड सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते चार्ज, क्योंकि चार्ज उनके पास सेम है। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है दैट फैक्टर इज साइज। अब जरा मुझे बताओ, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। इफ साइज इंक्रीज इसका मतलब है हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो सॉलिबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी। That means कि smallest size possessed by lithium or size is small, hydration energy is more. That means lithium chloride will more soluble in water as compared to sodium chloride, as compared to potassium chloride, and as compared to cesium chloride. The first factor is it depends upon the charge, and number second it depends upon size. कल भी मैंने बताया था charge factor is always dominant than साइज फैक्टर। साइज फैक्टर और चार्ज फैक्टर व्हेनेवर कि अगर इस तरह सिचुएशन हो कि साइज फैक्टर भी हो और चार्ज फैक्टर भी हो, चार्ज फैक्टर ऑलवेज विन, और दैट मींस चार्ज फैक्टर इज ऑलवेज डोमिनेंट फैक्टर। अब आगे देखो, मान लो हमसे पूछा गया आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, नंबर फर्स्ट इज MgCl2 और इसके बाद है NaCl और इसके बाद है AlCl3। Out of these three ionic compounds, which compound is more soluble in water? तो NaCl को देखा कॉमन साल्ट है, इट विल बी मोर सॉल्युबल। नहीं, अब अप्लाई करो कंसेप्ट। जरा मुझे बताओ, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर सेकंड। इफ मैग्नीशियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर सेकंड दैट मींस मैग्नीशियम के चार्ज क्या होगी? +2। और इसके बाद सोडियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर फर्स्ट तो चार्ज इज +1, और एल्युमिनियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 13, इसका मतलब है जो एल्युमिनियम के बाद जो चार्ज होगी दैट इज +3। अभी मैं बता रहा था कि सॉलिबिलिटी जो है, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डिवाइडेड बाय साइज। अब जरा मुझे बताओ, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ दीज एलिमेंट, फर्स्ट की सॉलिबिलिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, इसके बाद चार्ज और इसके बाद साइज। ये भी आप जानते हो, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज। तो इसका मतलब है फर्स्ट इज सोडियम, इसके बाद है मैग्नीशियम, इसके बाद है सॉरी एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इसके केस में चार्ज है वो +1 है, और इसके केस में जो चार्ज है वो +2 है, और इसके केस में जो चार्ज है दैट इज +3। अब बताओ सबसे ज्यादा साइज किस आयन का होगा? दैट इज Na पॉजिटिव, और इसके बाद Mg पॉजिटिव, और इसके बाद Al पॉजिटिव। अब यहां से पता चला कि आउट ऑफ दीज कंपाउंड्स एल्युमिनियम हैव स्मॉल साइज। इफ एल्युमिनियम हैव स्मॉल साइज दैट मींस हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर, एंड इफ हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर दैट मींस सॉल्युबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज। तो सेकंड फैक्टर चार्ज, एल्युमिनियम हैव +3 चार्ज, that means +3 charge is more, hydration energy is more and solubility is also more। और आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो solubility होगी that is AlCl3। तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड have more solubility। इसके बाद अब बताओ NaCl और MgCl, सर एनाइन तो सेम है, यहाँ पे भी क्लोराइड है, यहाँ पे भी क्लोराइड है, यहाँ पे भी क्लोराइड है, लेकिन इसके केस में है Na पॉजिटिव, इसके केस में है Mg पॉजिटिव है, लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज। इसका मतलब है मैग्नीशियम का साइज कम होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। अगर मैग्नीशियम का साइज कम है और सॉलिबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और प्लस सॉलिबिलिटी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, तो दैट मींस AlCl3 और इसके बाद MgCl2 और इसके बाद सॉलिबिलिटी होगी NaCl की। तो जरूरी नहीं है कि तो ओशन गुण और उसके बाद फिर डिसाइड कर दो एल्युमिनियम को और NaCl की सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सॉलिबिलिटी के जो फैक्टर्स है उसको चेक करना है। नंबर फर्स्ट इज हाइड्रेशन एनर्जी, और इसके बाद है हाइड्रेशन एनर्जी, और इसके बाद है चार्ज, उसके बाद है Cl। अब आगे देखो, मान लो हमसे पूछा गया आउट ऑफ दीज कंपाउंड विच इज मोर सॉल्युबल, फर्स्ट वन इज लिथियम क्लोराइड, इसके बाद है सोडियम क्लोराइड, इसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड, इसके बाद है रुबिडियम क्लोराइड, और इसके बाद जो है दैट इज सीजियम क्लोराइड। एंड व्हेन दीज क्लोराइड्स रिएक्ट विद वाटर, दैट मींस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन देम, और इस इंटरेक्शन का नाम क्या पड़ा है? दीज आर सेड टू बी हाइड्रेट। Whenever it dissolve in water and these ions will dissolve in water, और इसी प्रोसेस का नाम पड़ा है हाइड्रेशन। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हाइड्रेशन होती है,
हाइड्रेशन के केस में देखा गया एनर्जी रिलीज, और बताओ इस एनर्जी का नाम क्या पड़ा है? हाइड्रेशन एनर्जी। इसके केस में देखा गया कि when Li dissolve in water it separate and convert into Li positive and Cl negative। इसके केस में देखा गया जो एनर्जी रिलीज होती है that energy is 520 किलो जूल per mole energy release when LiCl dissolve in water and when NaCl dissolve in water। इसके केस में देखा गया कि 406 किलो जूल पर मोल एनर्जी डिसॉल्व व्हेन NaCl dissolve in water। और इसके केस में देखा गया कि KCl when dissolve in water it release 320 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज। और इसके केस में देखा गया कि when RBCl dissolve it release 486 किलो जूल 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज। और इसके केस में देखा गया ओनली 264 kg पर मोल एनर्जी। यू हैव टू नॉट रिमेंबर द डाटा, लेकिन यहां से पता चला कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके केस में रिलीज होगी? लिथियम के केस में। तो लिथियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व वाटर इट रिलीज 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी। इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है। यही वजह है कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो सॉल्युबिलिटी का जो नेचर है दैट इज ओवरऑल आपको याद रखना, वो एक्सोथर्मिक है। ओवरऑल आपको यहां से इस डाटा से पता चला कि since the value of hydration energy is the value of hydration energy since the value of hydration energy for LiCl is more as compared to CaCl, that is why lithium chloride is much more soluble than water। I hope you get this point कि इंट्रैक्शन, मोर इज द इंट्रैक्शन मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी। तो जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होगी इतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड की है, दैट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। तो आई विल रिपीट दिस सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सिंपल आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट फैक्टर की सॉल्युबिलिटी है क्या? सॉल्युबिलिटी मींस इंट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट and resulting the formation of solution। Third factor, third point about solubility, that is according to solubility principle like dissolves like। Fourth point, as the value of hydration energy increase solubility is also increase। Fifth point, out of these as we move down the group size increase solubility will decrease, as we move left to right size decrease and solubility is increase। So this is all known as what? As we move down the group size increase। तो out of Li and cesium have more size as compared to Li positive। अब Li पॉजिटिव का साइज कम है, अभी मैंने बताया। मान लो हमसे पूछा गया कि यहाँ पे LiCl है, इसके बाद NaCl है, और इसके बाद KCl है, इसके बाद RBCl है, और इसके बाद ClCl है, cesium है। इसके बाद हमसे पूछा गया आउट ऑफ दीज आयनिक कंपाउंड्स फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सिंपल तो का मेथड यहां पे भी हम यूज करते हैं। NaCl को देखा तो NaCl विल बी मच मोर सॉल्युबल, लेकिन आगे देखो आउट ऑफ दिस विच इज मोर सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रोजन एनर्जी इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड इनवर्सली इट डिपेंड्स अपॉन साइज। अब जरा मुझे बताओ चार्ज। इफ यू कैलकुलेट द चार्ज हियर Li positive, Na plus, K plus, Rb plus, Cs plus means the value of charge is same। तो ऑन द बेस ऑफ चार्ज वी कैन नॉट डिसाइड द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते चार्ज, क्योंकि चार्ज उनके पास सेम है। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है दैट फैक्टर इज साइज। अब जरा मुझे बताओ एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज। इफ साइज इंक्रीज इसका मतलब है हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, और हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रेशन एनर्जी। That means कि smallest size possessed by lithium or size is small, hydration energy is more. That means lithium chloride will more soluble in water as compared to sodium chloride, as compared to potassium chloride, and as compared to cesium chloride. The first factor is it depends upon the charge, and number second it depends upon size। कल भी मैंने बताया था charge factor is always dominant than साइज फैक्टर। साइज फैक्टर और चार्ज फैक्टर व्हेनेवर कि अगर इस तरह सिचुएशन हो कि साइज फैक्टर भी हो और चार्ज फैक्टर भी हो, चार्ज फैक्टर ऑलवेज विन, और दैट मींस चार्ज फैक्टर इज ऑलवेज डोमिनेंट फैक्टर।
अब आगे देखो, मान लो हमसे पूछा गया आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, नंबर फर्स्ट इज MgCl2 और इसके बाद है NaCl और इसके बाद है AlCl3। आउट ऑफ दीज थ्री आयनिक कंपाउंड्स विच कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो NaCl को देखा कॉमन साल्ट है, इट विल बी मोर सॉल्युबल। नहीं, आप अप्लाई करो कंसेप्ट। जरा मुझे बताओ, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर सेकंड। If magnesium belong to group number second, that means magnesium के चार्ज क्या होगी +2 और इसके बाद सोडियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर फर्स्ट तो चार्जेस +1 और एल्युमिनियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 13, इसका मतलब है जो एल्युमिनियम के बाद जो चार्ज होगी दैट इज +3। अभी मैं बता रहा था कि सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डिवाइडेड बाय साइज। अब जरा मुझे बताओ, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ दीज एलिमेंट, फर्स्ट की सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, इसके बाद चार्ज और इसके बाद साइज। ये भी आप जानते हो, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज। तो इसका मतलब है फर्स्ट इज सोडियम, इसके बाद है मैग्नीशियम, इसके बाद है सॉरी एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इसके केस में चार्ज है वो +1 है और इसके केस में जो चार्ज है वो +2 है और इसके केस में जो चार्ज है दैट इज +3। अब बताओ सबसे ज्यादा साइज किस आयन का होगा, दैट इज Na पॉजिटिव और इसके बाद Mg पॉजिटिव और इसके बाद Al पॉजिटिव। अब यहां से पता चला कि आउट ऑफ दीज कंपाउंड्स एल्युमिनियम हैव स्मॉल साइज। इफ एल्युमिनियम हैव स्मॉल साइज दैट मींस हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर एंड इफ हाइड्रेशन एनर्जी विल बी मोर दैट मींस सॉल्युबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज। तो सेकंड फैक्टर चार्ज, एल्युमिनियम हैव +3 चार्ज, that means +3 charge is more, hydration energy is more and solubility is also more। और आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो solubility होगी that is AlCl3। तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड have more solubility। इसके बाद अब बताओ NaCl और MgCl, सर एनाइन तो सेम है, यहाँ पे भी क्लोराइड है, यहाँ पे भी क्लोराइड है, यहाँ पे भी क्लोराइड है, लेकिन इसके केस में Na पॉजिटिव, इसके केस में ये Mg पॉजिटिव है, लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज। इसका मतलब है मैग्नीशियम का साइज कम होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। अगर मैग्नीशियम का साइज कम है और सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और प्लस सॉल्युबिलिटी का वैल्यू भी इंक्रीज होगा तो दैट मींस AlCl3 और इसके बाद MgCl2 और इसके बाद सॉल्युबिलिटी होगी NaCl की। तो जरूरी नहीं है कि तो ओशन अंकुल और उसके बाद फिर डिसाइड कर दो एल्युमिनियम को और NaCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सॉल्युबिलिटी के जो फैक्टर्स है उसको चेक करना है। नंबर फर्स्ट इज हाइड्रेशन एनर्जी और इसके बाद है हाइड्रेशन एनर्जी और इसके बाद है चार्ज, उसके बाद है Cl। अब आगे देखो, मान लो हमसे पूछा गया आउट ऑफ दीज कंपाउंड विच इज मोर सॉल्युबल, फर्स्ट वन इज लिथियम क्लोराइड, इसके बाद है सोडियम क्लोराइड, इसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड, इसके बाद है रुबिडियम क्लोराइड और इसके बाद जो है दैट इज सीजियम क्लोराइड। एंड व्हेन दीज क्लोराइड्स रिएक्ट विद वाटर, दैट मींस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन देम और इस इंटरेक्शन का नाम क्या पड़ा है, दीज आर सेड टू बी हाइड्रेट। Whenever it dissolve in water and these ions will dissolve in water और इसी प्रोसेस का नाम पड़ा है हाइड्रेशन। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हाइड्रेशन होती है, हाइड्रेशन के केस में देखा गया एनर्जी रिलीज और बताओ इस एनर्जी का नाम क्या पड़ा है, हाइड्रेशन एनर्जी। इसके केस में देखा गया कि when Li dissolve in water it separate and convert into Li positive and Cl negative। इसके केस में देखा गया जो एनर्जी रिलीज होती है that energy is 520 kilojoule per mole energy release when LiCl dissolve in water and when NaCl dissolve in water। इसके केस में देखा गया कि 406 किलोजूल पर मोल एनर्जी डिसॉल्व व्हेन NaCl dissolve in water और इसके केस में देखा गया कि KCl when dissolve in water it release 320 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज और इसके केस में देखा गया कि when RbCl dissolve it release 486 किलोजूल 498 किलोजूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज और इसके केस में देखा गया ओनली 264 kg पर मोल एनर्जी। यू हैव टू नॉट रिमेंबर द डाटा, लेकिन यहां से पता चला कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके केस में रिलीज होगी, लिथियम के केस में।
तो लिथियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट रिलीज 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है। यही वजह है कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो सॉल्युबिलिटी का जो नेचर है दैट इज ओवरऑल आपको याद रखना वो एक्सोथर्मिक है। ओवरऑल आपको यहां से इस डाटा से पता चला कि since the value of hydration energy, this is the value of hydration energy, since the value of hydration energy for LiCl is more as compared to CaCl, that is why lithium chloride is much more soluble than water. I hope you get this point कि इंट्रैक्शन, मोर इज द इंट्रैक्शन, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी। तो जितना ज्यादा इंट्रैक्शन होगी इतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आयनिक कंपाउंड की है, दैट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। तो आई विल रिपीट दिस, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी सिंपल आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट फैक्टर की सॉल्युबिलिटी है क्या? सॉल्युबिलिटी मींस इंट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट and resulting the formation of solution. Third factor, third point about solubility, that is according to solubility principle like dissolves like. Fourth point, as the value of hydration energy increase, solubility is also increased. Fifth point, out of days as we move down the group, size increase, solubility will decrease. As we move left to right, size decrease and solubility is increased. So this is all known as what is solubility.